Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. A literary evening in Houston, Kitab aur Chai honors Dr. Fatma Hassan, Jamal Mohsin and Rahman Faris. Now, viewers, on Tuesday, July 15, 2025, a beautiful literary event titled Kitab aur Chai was organized by the Pakistan Association of Greater Houston, PAGH. The evening celebrated Urdu literature and honored respected writers and poets from Pakistan. The program began with the soulful recitations of the Holy Quran and a naat by the renowned Qari Sayyid Sadaqat Ali, who was invited by PAGH President Siraj Narsi and escorted by Dr. Asif Qadir. He then welcomed all guests and highlighted PAGH ongoing efforts to promote Urdu language and literature by conducting Kitab aur Chai program. کلام پاک سے تقریب کا آغاز کریں. سید صداقت علی صداقت علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کیونکہ یہ در وہ ہے، یہ در وہ ہے، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. اکرام ہے محمد عادل چشتی صاحب کا. مختی میں لکھتے ہیں: میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے، وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر. اور میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل حیات. ڈاکٹر صاحب مکتب پیش کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل حیات کٹے گی کیسے
کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر، کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر. آواز گونجی. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. قاری صداقت علی صاحب کو کہیں اور بھی پہنچنا ہے تو Viewers, the event's special focus was on Dr. Fatma Hassan, a leading literary figure from Pakistan, whose books were recognized in a tribute session. She is associated with the Pakistan Art Council and lead the iconic Josh Maliabadi Library in Karachi. جتنا وقت میرے ساتھ یہ اسپینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی نشست کرنا آسان نہیں ہوتا، کرنا ہے اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور میں یہ سب کچھ نہ کر پاؤں اگر عدیل بھائی کا ساتھ ہوں. تو عدیل بھائی بہت بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے دیگر پینلسٹ سے جناب مجید اختر صاحب محترم. سر آپ کے بغیر تو یہ نشستیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. ہم نے جب کتاب اور چائے کا پہلی تقریب جب کی تھی تو وہ مجید بھائی کی معاونت سے کی تھی، اور وہاں سے یہ فاؤنڈیشن پڑی اور یہ عمارت اب آہستہ آہستہ آئی ہوئی ہے. ہمارے شہر کے ایک اور انتہائی معتبر شخصیت پرومیننٹ شاعر جناب مظفر ہاشمی صاحب، سر آئیے. ہم نے آپ کو چھوڑنے نہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جناب رحمان فارس صاحب سے. یہ آج کے زمانے کے احمد فراز. اور نہایت احترام سے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب. میرا مقام نہیں کہ میں رحمان فارس اور فاطمہ حسن صاحبہ کا تعارف کرواؤں، یہ مشکل کام عدیل بھائی کے ذمے ہے. عدیل بھائی مائک آپ کے حوالے، اسٹیج آپ کے حوالے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی میں جناب جمال محسن صاحب تشریف لائیے. حالانکہ طبیعت شتافہ کی کچھ ناساز ہے، اگر ٹھیک ہے تو تشریف لائیے. پھر آئیے. ہماری معذرت قبول فرمائیے. عشت صاحبہ کو میں پہلے بلا نہیں سکا. آج بڑا اسٹریسفل دن نکلا. میں یہاں پہنچا بھی دیر سے ہوں، اور اس طرح کے کاموں میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو عشت صاحبہ پلیز میری معذرت قبول فرمائیں. چلیے اس دعا سے اس تقریب کا ایک دفعہ پھر آغاز کرتے ہیں کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے. دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. زباں پہ حرف دعا رکھ، یہ عین ممکن ہے. تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. اور یہ کچھ آرزو کرنے کا ہی سلیقہ ہے، دعا کا سلیقہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسی ہستیاں ایک جگہ جمع ہیں اس اسٹیج پہ. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ،
سے ایک عرصے سے ملاقات ہے. ان کا تعارف کچھ دیر میں آپ سے کرایا جائے گا. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے کمشنر صاحب رحمان فارس صاحب کی بات کرتے ہیں, میری بات کرتے ہیں. پاکستان کانسرٹ کے ہمارے آفتاب چودھری بھائی یہاں موجود ہیں, تو ایسمیٹ بیچ میٹ ہیں رحمان فارس کے, اور میں چاہوں گا کہ کیا اچھا ہو کہ آج بیچ میٹ جو ہے اسٹیج میٹ بھی ہو جائیں. تشریف لائیں. جی رحمان فارس کا تذکرہ شروع ہوا, اور رحمان کے لیے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. کمال کا پیشن ہے. ایک کہنا چاہیے کہ جنون کی حد تک والہانہ, اور ان کے متعدد شوق ہیں, ایک نہیں ہے. پڑھائی تو کمال کی ظاہر سی بات ہے. بھیڑ میں رہ کر بھی میں نے خود کو تنہا کر دیا, اور یہ زمین حسرت کی ہے, اس پر قدم رکھا تو پھر. یہ زمین حسرت کی ہے, اس پر قدم رکھا تو پھر. اتنی جرت ہو گئی عرض تمنا کر دیا. یہ زمین حسرت کی ہے, اس پر قدم رکھا تو پھر. اتنی جرت ہو گئی عرض تمنا کر دیا. آپ گروی رکھ دیے, آنکھوں کا سودا کر دیا. قرض دل کیا قرض جاں بھی جاتا ہے. یہ آپ 90s کا کراچی دیکھیے, یعنی وہ کراچی 70s میں تھا کہ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہاری زبان کیا ہے, تم کہاں ماتم کرتے ہو اور کہاں میلاد پڑھتے ہو. اور اس کراچی کا کیا حال کر دیا گیا تھا. جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا. بہت آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا. پہچان جن سے تھی وہ حوالے مٹا دیے. پہچان جن سے تھی وہ حوالے مٹا دیے. اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا. پہچان جن سے تھی وہ حوالے مٹا دیے. اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا. اور کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے, کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے. دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا. کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے. دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا. اور وہ کھیل تھا, مذاق تھا یا خوف تھا کوئی. وہ کھیل تھا, نہ کمتر ہوں نہ برتر. نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر. انسان ہوں انسان کے معیار میں. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. واہ 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 واہ. انسان ہوں انسان کے معیار میں. نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر. انسان ہوں انسان کے معیار میں. دیکھے اور رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمین پر. رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمین پر. پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں. دیکھے پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں. دیکھے اور منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل. منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل. اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں. دیکھے بہت خوب. منسوب ہے انسان سے جتنے بھی
पास आए, अपने ही नहीं मेरे भी एतवार में देखे, और कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखे, क्या बात है, बाजार में लाए थे आप। और आखिरी शेर है कि उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी मेमार में देखी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये तो लूट लिया भैया, बहुत तामीर की खूबी उसी मेमार में, बहुत ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी मेमार में देगा, बहुत खूब। आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देगा, बहुत खूब, बहुत खूब। की हर मौज से अपने प्यारों को बचाया, दर्द की हर मौज से आंख में सैलाब रोका, दिल को दरिया कर दिया। अपने प्यारों को बचाया, दर्द की हर मौज से आंख में सैलाब रोका, दिल को दरिया कर दिया। फूल पौधे पेड़ बच्चे घर का आंगन और तुम, परवेज जाफरी। फूल पौधे पेड़ बच्चे घर का आंगन और तुम, ख्वाहिशों के नाम पर इन सबको यकजा कर दिया, ख्वाहिशों के नाम पर इन सबको यकजा कर दिया। Now, another highlight was the book launch of well-known and senior writer and contributor to Desi TV USA, Mr. Jamal Mohsin. His introductions was given by Mr. Tariq Nihal Khan, followed by Jamal Mohsin's own talk about his journey and the foundation of Bedil Library in Sharafabad, Karachi, and a few-minute documentary on Sharafabad, Karachi. So let's watch this video. 3 मेहमानों के ट्रैवल का स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि हमें वीकडे में ही प्रोग्राम करना पड़ा। नॉर्मली आपको पता हम किताब और चाय हमेशा संडे को करते हैं, लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि आज माशाल्लाह हॉल तकरीबन पूरा भरा हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बल्कि ह्यूस्टन में पाकिस्तानी मीडिया के पायनियर और फाउंडर्स में से हैं जनाब तारिक साहब, उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पे आएँ और हमारे मौजूद मेहमान जनाब मोहसिन जमाल साहब का तारुफ कराएं। आइए तारिक साहब। और तारिक साहब जो है PAGH के पास में बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आई लाइक टू वेलकम मोहसिन, जमाल मोहसिन साहब, फातिमा हसन और रहमान फारिस साहब। इनका बड़े कई दफ़ा मतलब पोस्टर में नाम आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आज शुक्र है इनसे सर में मुलाकात हासिल हुई, खुद भी तशरीफ़ लाएँ। एनीवे मुझे जमाल मोहसिन साहब को तारुफ करने के लिए कहा गया, तो जमाल मोहसिन साहब से हमारी दोस्ती इस तरह हुई कि हमारे गुरु हैं फैज़ रहमान साहब। आप लोगों को आवाज़ आ रही? अच्छा, हमारे गुरु हैं फैज़ रहमान साहब, और उन्होंने मतलब जमाल मोहसिन साहब ने उनको कांटेक्ट किया सहाफ़त के हवाले से, किन किन को आप जानते हैं, किसने क्या शुरू किया क्या नहीं शुरू किया। तो इस तरह हमारी इनसे दोस्ती का आगाज़ हुआ, और इन्होंने मुझसे अपनी जो सहाफ़त के बारे में जो किताब लिख रहे थे, जो भी क्या कहते हैं उनको कुछ तहरीर करना होगा सहाफ़त के हवाले से, तो उस सिलसिला हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। इनका एक मजमून था अमेरिका में उर्दू सहाफ़त, तो उस सिलसिला हमारा उनसे वो हुआ। उसके बाद बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इनसे दोस्ती बढ़ती चली गई। पता चला कि ये बेदिल लाइब्रेरी शरफाबाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर हमारे इनके डाकखाने मिलते चले। इसकी वजह ये थी कि आई एम आल्सो रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव, आई बीन इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर लास्ट 45 ईयर्स, सो एज मोहसिन जमाल साहब। मोहसिन जमाल साहब जो है वो उन्होंने बेसिकली
बहुत ही कदावर शख्सियत के मालिक हैं, ड्रामा निगार हैं। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने MS सहाफ़त में किया, आयोना यूनिवर्सिटी से MBA किया फाइनेंस में। और इनका ये सबसे बड़ा कमाल है, ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग पे उर्दू में किताब लिखी। देयर इज ओनली वन बुक इन फाइनेंशियल प्लानिंग विच इज़ द बैकबोन फॉर एवरीबॉडी। हम लोग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, बट आई गेट अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो इन्हें जमाल मोहसिन का ताल्लुक एक साफ़ी घराने से है। इनमें इनके चार में से 3 भाइयों ने सहाफ़त का पेशा अख्तियार किया, सबी मोहसिन मरहूम, अफजाल मोहसिन और ख़ुद जमाल मोहसिन। कलम के साथ दोस्ती इनकी बड़ी गहरी है। चौथे भाई डॉक्टर इकबाल मोहसिन अर्जियात के मौजू पर मीडिया में लिखते और तजिया करते रहे। बहरकैफ अल्हम्दुलिल्लाह जमाल मोहसिन साहब हमारे लिए भी इनका जो पुराना शौक़ था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ। इन्होंने उर्दू टाइम में भी लिखा, पाकिस्तान पोस्ट में भी लिखा, और हमारे लिए भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह देसी TV USA के लिए तो ये इवेंट्स वगैरह कवर करते हैं। इनका सहाफ़त इनका पैशन है, मतलब ही लाइक टू डू, ही मतलब ही इज़ ए फुल टाइम कम्युनिटी सर्वेंट, सो इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल थिंग। अच्छा जी, इनकी किताब पैसों की बातें अमेरिका में फाइनेंस प्लानिंग उर्दू में वाहिद किताब है, बता दिया मैंने आपको। दूसरी किताब फ़िकाहिया कालमों पर मबनी अमेरिका में दायमी धरना है, क्योंकि मोहसिन जमाल साहब फरमाते हैं कि ये जब 1979 में जब ये वारिद हुए, जब से उन्होंने धरना दे दिया और आज तक वो धरना कायम राइट सर। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने तीसरी किताब के मुरतब हैं और मालूम है बेदिल लाइब्रेरी के आसपास, क्योंकि इनका ताल्लुक मोहल्ले शरफाबाद से है और बहुत सारे शरफाबाद के लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई है। तो आई वाज सरप्राइज कि शरफाबाद के माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं। मोहसिन जमाल स्कूल से लेकर अब तक समाजी सरगर्मियों में शामिल रहे हैं। अमेरिका में कई अंजुमन के बानी हैं। इनकी एक और किताब है, इनकी एक और नकल से ही हैज़ पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुरतब किया था, इन्होंने और बशीर कमल है, हमारे बड़े पुराने साथी मरहूम हैं, उर्दू टाइम के बानी खलील रहमान साहब, बयाद खलील, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़े अच्छे खासे लोग उसके अंदर आए। तो ये सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि मरहूम को इन्होंने जाने के बाद भी याद रखा। नहीं तो लोग नॉर्मली ताज़ियाती जलसे होते हैं, लेकिन वो एक आध दफ़ा होता है, सोएम हुआ, ये हुआ ख़त्म। लेकिन खलील भाई अल्लाह ताला को गरीब रहमत करे, वो आज भी हम में ज़िंदा हैं, उर्दू टाइम के बानी हैं। I don't know if I'm missing anything else, मोहसिन भाई, जमाल भाई। बाकी तो आपको सब कुछ पता चल ही गया। पेशे के बाद से ये रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये स्टॉक ब्रोकर। इनकी बुक ऑफ बिजनेस बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे तरीके से लोग चल रहे हैं। आई लाइक टू थैंक्स सिराज नारसी साहब, जिन्होंने मतलब इन्होंने मुझे रब्ता किया था जमाल मोहसिन ने कि फातिमा हसन आई हुई हैं और आप लोग आना चाह रहे हैं, तो इन्होंने इसको शॉर्ट नोटिस पे फैसिलिटेट किया। आई लाइक टू थैंक सिराज भाई उसका। और दूसरी बात, इनका जो किताब और चाय का जो सिलसिला है ना, वो बहुत बड़ा सिलसिला। मैंने एक छोटा सा कारनामा अंजाम दिया था, उर्दू की क्लासेस मैंने शुरू कराई थी। व्हेन आई वाज एजुकेशन कमेटी का चेयर था, तो मैं समझ रहा था मैंने वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उसमें बहरहाल वो एक कारनामा था, इसलिए 65 किड्स वर ग्रेजुएटेड बैक इन दैट टाइम। आज से 30 साल पहले 30 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे। MA जिना स्कॉलरशिप को हमने कंटिन्यू रखा। तो हमारी भी छोटी मोटी जिना सर्व ऑन बोर्ड ऑन मल्टीपल पोजीशन में मैं रहा हूँ। बहरहाल मेरे इतना टाइम नहीं है, मैं क्योंकि वीक डे है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बड़े मशकूर ममनून हैं कि हमारे मेहमान गिरामी जो लोग आए हैं उनको आपने इज्जत बख्शी और आप लोग तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। Viewers, now followed by Jamal Mohsin की किताब की रुनुमाई। Celebrated poet Rahman Faris, whose work is widely respected, also launched his book Yadabad. He shared a few powerful verses and said, "If we continue this literary journey, our new generations will stay connected with the beauty of Urdu literature."
नाज़रीन एक वीडियो मुलाज़ा कीजिए जनाब मौसम जमाल की काविशों पर. ہر شخص کی زندگی میں ایک شہر ایسا ضرور ہوتا ہے جو دل میں رچ بس جاتا ہے. وہ شہر محض گلی کوچے یا عمارتیں نہیں بلکہ یادوں کا ایک جہان ہوتا ہے. وہاں گزرے لمحات، بولی گئی باتیں، سنی گئی آوازیں اور دیکھی گئی تصویریں انسان کے باطن میں گویا سب ہو جاتی ہیں. شہر دل میں بسا ہے ایک گوشہ خواب سا جس کی ہر گلی میں ہے کوئی یاد بے حساب. شیخ آباد بھی ایسا ہی ایک محلہ ہے. کراچی کی اس بستی نے نہ صرف رہائش دی بلکہ تہذیب، تعلیم، ادب اور ثقافت کا مرکز بھی. Now, Mr. Adil Zaidi introduced his book and encouraged young writers to write with sincerity and dedication. Jamal Mohsin sharing his passion for literature and the importance of such gathering, and also told the audience how long him and his siblings are involved with journalism. Now, despite being held on a weekday, the event witnessed a large and thoughtful audience, including scholars, writers, and lovers of Urdu poetry and prose. The event started at 7 p.m. and concluded by 9:45 p.m. Now, this event was part of a series of cultural and literary programs led by PAGH, and the idea for this particular gathering was initiated by a Desi TV USA contributor who said, "It was my personal effort to bring respected literary figures like Dr. Fatma Hassan and Jamal Mohsin to the stage here in the United States, so they received the honor they truly deserve." Viewers, now prominent names among the participants: Qari Sayyid Sadaqat Ali, Quran recitations and Naat. Another one is Siraj Narsi, President PAGH, host of the event. Dr. Fatma Hassan, guest of honor literary figure from Pakistan. Rahman Faris, poet, author of Yaad Abad. Jamal Mohsin, author, founder of Bedel Library, Karachi. Adil Zaidi, MC. Now, Tariq Nihal Khan introduced Jamal Mohsin and welcomed Dr. Fatma Hassan and Rahman Faris, long time overdue. In the last, audience members, writers, scholars, and Urdu lover. Viewers, in the last, Kitab Aur Chai continues to be a powerful platform from promoting Urdu language and culture in Houston. Events like these help keep the literary spirit alive and connect the overseas Pakistani communities with their rich heritage, culture, and roots. So let's enjoy the video and witness a great memorable evening with so many dignitaries like Qari Sayyid Sadaqat Ali, Dr. Fatma Hassan, Rahman Faris, Jamal Mohsin, Aman Khan Dil, Parvez Jafri, Ishrat Afreen, Adil Zaidi, Majid Akhtar, and prominent media personalities. So most of the regular attendees stated this was the best event for Kitab Aur Chai Urdu Literary Series. نہیں مگر یہ بخوبی جانتا ہوں کہ بیوی کہیں کی بھی ہو، اس سے بنا کر رکھنا بچوں کا کھیل نہیں. تو یہ پورا تو میں نہیں پڑھوں گا. ایک اور جو کہ میرے خیال میں سب لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو حالات پاکستان میں جو وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو یہاں کے لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو وارداتیں ہوتی ہیں. تو 2006 میں میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا اور وہاں ایک واردات ہو گئی جس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا، پاکستان کا گڈ بیڈ اور اگلی رخ. تو اس میں نے جو بیڈ جو ہوا وہ تو بتایا کہ بھائی دن دہاڑے لٹ گئے، لیکن اس کا جو اچھا رخ ہے اس میں جو خوبی کھایا کرتا، وہ اپنی جھولی میں بھر لیتی تھی انہیں چھو کر، ہلا کے شاخ میں جو پھل گرایا کرتا، جب اپنے حصے کا ایک ایک پھل ہڑپ کرتا پھر اس کے ہونٹوں کے شہتوت کھایا کرتا.
तालियां बजा जनाब मान 72 गज़लों में फी गज़ल औसतन 7 अशार भी हों तो 500 से कुछ ऊपर अशार बनते हैं जिनकी एक ही रदीफ है और सारे के सारे अशार ज़ाहिरन आता है। और हम लोग जब पाकिस्तान से यहाँ आ गए तो जिन लोगों ने बहुत जम के लिखा, बहुत इश्क से लिखा, मोहब्बत से लिखा और जुड़ के लिखा और लफ्ज़ के साथ इंसाफ करके लिखा, उनमें रहमान फारिस का जिक्र आता है। और अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो चंद एक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे बाद जिन्होंने अपना नाम बनाया और जिन्होंने ये बताया कि वो मौजूद हैं उर्दू शेरी मंजरनामे पे, और उनमें अगर आप 1 या 2 या 3 नाम लेंगे तो रहमान फारिस का नाम उसमें ज़रूर आएगा। दूसरी बात यह है कि रहमान फारिस सिर्फ शायरी को एक पढ़ाई तो कमाल की ज़ाहिर सी बात है कि सिविल सर्वेंट हैं और भागलपुर में कमिश्नर के ओहदे पे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं हुआ करता जितनी आसानी से इन्होंने तय किया। और ये इनके अपनी महारतें हैं, हर फन में है ये ताकि इन्हें क्या नहीं आता। क्या बात। तो भरपूर तालियां। नोबल में मैं था न्यूयॉर्क में, जहाँ मेरे जहन में ये आइडिया आया कि ये इसे एक ज़मीन में यादों को पिरोना चाहिए। पहली बारिश एक ऐसा नासिर काज़मी का है 33 गज़ल्स का, लेकिन मैं ये चाहता था, मैं आपको मुख्तसरन शेर सुनाने से पहले बता दूँ, इस किताब में 282 ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनको हमारे मुआशरे ने कत्ल कर दिया और हमारी शायरी ने मतरूक करार दे दिया, गज़ल का हिस्सा नहीं बन पाए। कोचवान, टांगे पान और हलवाई, डाकिया, ये सब किरदार ऐसे थे कि जो हमारे आसपास, आप लोग भी अपने गांव, अपने शहर में, अपने जन्म भूमि से होकर आए होंगे, अभी भी जो आप राजनासी साहब से कि तशरीफ लाएं और आज की तकरीब के मुताल्लिक अपने ख्यालात के इज़हार भी करें। फारिस टीवी और फिल्मों में आ जाते तो बेचारे हुमायूं सईद क्या करते। भाई मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ, पाकिस्तान सेंटर में पक्का पाकिस्तान। मैं जब मास्टर्स करने यूटी ऑस्टिन आया था, पाकिस्तानी सरकार के कर्ज़े हसना पर की तकरीब कैसे इंसाफ बंदा कर सकता, इतनी बड़ी शख्सियत। मेरे लिए कल एक बड़ी सआदत का दिन था कि रात गए जब कौंसल जनरल साहब के साथ 14 अगस्त के सिलसिले में कुछ तकरीबात प्लान करने के हवाले से मीटिंग से फारिग हुए, रात 10 साढ़े 10 बजे तक अदिल भाई को फ़ोन किया कि अदिल भाई कल की नशिस्त के बारे में एक और गुफ्तगू कर लें, क्योंकि बड़ी टेंशन हो रही है किस तरह मैनेज करेंगे। हालांकि इससे पहले 2-3 दफ़ा मामला तय पा चुके थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर फातिमा हसन आ रही हैं इत्तफाक से, उनका भी आ गई हैं, आ जाइए। तो मैं अदिल भाई के घर उस वक्त पहुंचा 10:30 पौने 11 बजे। सआदत हासिल हुई डॉक्टर साहब से मिलने की, सर पे उन्होंने हाथ रखा, मेरी खुशनसीबी, मेरी सआदत, PAGH की खुशनसीबी कि आज यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माजरत मोहसिन जमाल साहब से, मैं आपको पहले बुला नहीं सका, मुझे यहाँ सामने कहीं आप नज़र नहीं आए, मैं समझा कि आप शायद चले गए या नहीं हैं, आप बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे। वीकडे और वीकडे में तकरीब एक स्ट्रेसफुल बिजी डे के बाद करना, मैं कुछ थोड़ा सा आवाज़ पकड़ रहा था, मैं इशरत आपा को भी ऊपर दावत नहीं दे सका, माजरत चाहता हूँ। किताब और चाय की तकरीब मोतबर हो जाती है जब इशरत आपा आती हैं और परवेज़ भाई आते हैं। बहुत तो मिलने को मुलाकात समझता है, क्या कहूँ उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। हमने देखा है फकत ख्वाब खुली आंखों से, ख्वाब थी
वस्ल की वो रात समझता ही नहीं। हमने देखा है फकत ख्वाब खुली आंखों से, ख्वाब थी वस्ल की वो रात समझता ही नहीं। और मैंने पहुंचाया उसे जीत के हर खाने तक, मैंने पहुंचाया उसे जीत के हर खाने तक। मेरी बाजी थी मेरी मात समझता है जो घरों को वो रास्ता बदल दिया, जाता है जो घरों को वो रास्ता बदल दिया। आंधी ने मेरे शहर का नक्शा बदल दिया, आंधी ने मेरे शहर का नक्शा बदल दिया। पहचान जिनसे थी वो हवाले मिटा दिए, पहचान जिनसे थी वो हवाले मिटा दिए। उसने किताब साथ का सफा बदल दिया, पहचान जिनसे थी वो हवाले मिटा दिए। उसने किताब साथ का सफा बदल दिया। और कितना अजीब है वो मुसव्विर के गौर से, कितना अजीब है वो मुसव्विर के गौर से। देखे जो खद खाल तो चेहरा बदल दिया। कितना अजीब है वो मुसव्विर के गौर से, देखे जो खद खाल तो चेहरा बदल दिया। और वो खेल था मजाक था या खौफ था कोई, वो खेल था मजाक था या खौफ था कोई। एक चाल चल के उसने जो मोहरा बदल दिया। वो खेल था मजाक था या खौफ था कोई। एक चाल चल के उसने जो मोहरा बदलने का खेल तो अभी तक जारी है। एक चाल चल के उसने जो मोहरा बदल दिया। और आखिरी शेर है, करता रहा असीरी के एहसास को शदीद, करता रहा असीरी के एहसास को शदीद। जंजीर खोल दी कभी पहरा बदल दिया। एहसास को शदीद, जंजीर खोल दी कभी पहरा बदल दिया। जाता है जो घरों को वो रास्ता बदल दिया। आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार। आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखे। मलबूस बदन देखे है रंगीन कबा में, हमारे बदन और हमारे कपड़ों पे बहुत शायरी की गई है। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन कबा में, अब पैरहने साथ को इजहार में देखे। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन कबा में, अब पैरहने साथ को इजहार में देखे। 100 रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आऊं, 100 रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आऊं। गुलदस्ते मानी मेरे अशार में देखे, गुलदस्ते मानी मेरे अशार में देखे। और शेर है कि पूरी न अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, पूरी न अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर। इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखा। पूरी न अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर। इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखे। और रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर। पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखे, पीछे रफ्तार में देखे। और मंसूब है इंसान से जितने भी फज़ाइल, मंसूब है इंसान से जितने भी फज़ाइल। अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे। कर दिया कर्ज़ जा भी आज चुकता कर दिया।
गैर को इल्जाम क्यों दे, दोस्त से शिकवा नहीं। गैर को इल्जाम क्यों दे, दोस्त से शिकवा नहीं। अपने ही हाथों किया जो कुछ भी जैसा कर दिया, अपने ही हाथों किया जो कुछ भी जैसा कर दिया। और कुछ खबर भी हो न पाई इस प्यारे इश्क में, कुछ खबर भी हो न पाई इस प्यारे इश्क में। कौन यूसुफ हो गया, किसको जुलेखा कर दिया। कुछ खबर भी हो न पाई इस प्यारे इश्क में। कौन यूसुफ हो गया, किसको जुलेखा कर दिया। और दिल के दरवाजे पे यादें शोर जब बनने लगी, दिल के दरवाजे पे यादें शोर जब बनने लगी। धड़कनों का नाम देकर बोझ हल्का कर दिया। और कितने अच्छे लोग थे, क्या रौनक थी उनके साथ। इशत मेरी बचपन से, इसका बचपन था या ना हमारा बचपन था, हम दोनों कुछ थोड़ी सी उम्र का फर्क है, हमारा फर्क है। हम साथी थे, शायदा हसन मेरी साथी थी, सब हिजरत कर गई। इस वक्त कराची में मैं ही रह गई हूँ। परवीन आदमाबाद सुधारी, वो भी मेरे मोहल्ले में रहती थी, अब मेरी दोस्त थी। तो कितने अच्छे लोग थे, क्या रौनक थी उनके साथ, जिनकी रुखसत ने हमारा शहर सुना करना। कितने अच्छे लोग थे, क्या रौनक थी उनके साथ, जिनकी रुखसत ने हमारा शहर सुना कर दिया। मुनीर न्याजी आते थे। ये इस कदर इनका कारनामा है, रहमान फारिस का ये कारनामा है जिसकी रुनुमाई होने वाली है यहाँ पे। 100 नज़मों का मंजूम तर्जुमा इन्होंने किया पाब्लो नेरूदा की। ये बड़ा कारनामा है, आसान काम नहीं है। जल्दी जल्दी इन्होंने कहा आखिरी कॉपी है तो हमने नाम लिख दिया। फ्रंट दीजिएगा ना जी, दोनों किताबें अलग अलग करके। डॉक्टर शिराज ज़ैदी इक़बालियात के प्रोफेसर हैं, कराची में। रात उनसे बात हुई, पहली दफ़ा डाकखाना मिल गया है उनसे, बिजनौर से ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद। मेरी गुजारिश है डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा से कि पोडियम पर तशरीफ़ लाएं और गौर कीजिए कि जियो के मॉर्निंग के प्रोग्राम अब्दुल्ला और हुमा के साथ ही प्रोग्राम होता है। उस पर मैंने जब ये अनाउंस किया कि ये उस 4 हिस्सों में बांटी गई किताब, सुबह दोपहर शाम और रात, और 25-25 नज़में उन 4 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मौजूद हैं। तो उसने अपनी बीवी के लिए, अपनी बेगम के लिए, मेटिल्डा उसका नाम था, तो हुमा की आंखें खुली रह गई। जियो की एंकर कहने लगी कोई शायर अपनी बीवी पे भी नज़में लिख सकता है। मैंने कहा जी उन्होंने अपनी ही बीवी पे नज़में कही। बहरहाल मैं कुछ यादाबाद से पेश करना चाहूँगा, लेकिन पहले ये इनके पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन का कि उन्होंने मेरे सिद्दत अफजाई के काबिल समझा। मेरे लिए बाइस तकरीम है, बाइस कदर अफजाई है कि इस वक्त इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं स्टेज पर, और उनकी मौजूदगी में मुझे अपने कुछ चीज़ें सुनाने का मौका मिल रहा है। साहिबा सदारत से, नुसरात से और अपने बैचमेट से और तमाम लोगों से, और गमफर भाई, मजीद भाई, अबूब भाई, सबसे इजाज़त लेके ये किताब CN Sonetos de Amor, स्पेनिश नोबेल लॉरिएट हैं पैब्लो नेरूदा। This is the best-selling poetry book of any language, Spanish में जो। So viewers, thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinda, signing off. Stay tuned for more news. DCTV USA, DTVNN and our OTT platform DTV Flix, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.